अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद की LB नगर जोन SOT टीम के लोगों ने मीरपेट पुलिस की मदद से एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की स्मगलिंग में मुलविस एक बैन रियासती गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 80 किलो गांजे के 40 पैकेट्स, एक स्विफ्ट कार जिसमें ये लोग गांजा स्मगल कर रहे थे, 4200 की नकद रकम के साथ साथ उनके 4 कीमती मोबाइल्स भी जब्त कर लिए, जिनकी जुमला मालियत 15,20,000 रुपये बतलाई गई है। गिरफ्तार शुदगान के नाम ये बतलाए गए: गोगुलत साइदा नायक उर्फ साइदा, लावुडिया अनिल, लकावत विनोद और चौथा है लकावत हुसैन अली। ये लोग ज़िले सूर्यापेट के साकिन बतलाए गए और वहाँ से गांजा लाकर शहर हैदराबाद और निज़ामाबाद में ग्राहकों को ये सप्लाई किया करते थे। लगे हाथों महकमा पुलिस जब्त करदा गांजे की तलाफी भी मीडिया के रूबरू पेश कर देती है तो आवाम के उस पर शक व शुबात हटाए जा सकते हैं। इस केस में रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश M भागवत, डिप्टी कमिश्नर LB नगर सनप्रीत सिंह और SOT के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर J सुरेंद्र रेड्डी की निगरानी में SOT के इंस्पेक्टर T रवि कुमार और मीरपेट के इंस्पेक्टर यादయ్య ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। हेलो, आंध्र ओरिस्सा बॉर्डर దారకొండ చేస్తూ మన SOT సిబ్బంది తర్వాత మీర్పేట్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. 80 kg గాంజా దొరికినాయి. తర్వాత ఈ మారుతి స్విఫ్ట్ టూర్ కార్, తర్వాత క్యాష్ 4,200, 4 మొబైల్ ఫోన్స్, మొత్తం కలిపి 15,20,000 విలువ ఉన్న ఈ రికవరీ ఉంది. ఈ నలుగురు దాంట్లో అరెస్ట్ అయినారు. ఈ అరెస్ట్ అయిన నలుగురు గుగులోత్ సైదా నాయక్ ఎలియాస్ సైదా, లౌడియా అనిల్, లకావత్ వినోద్, తర్వాత లకావత్ హుసేన్. వాళ్ళందరం సూర్యాపేట్ జిల్లా పెన్పాడ్ ఆర్ నూతన్కల్ మండల్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఈ AOB ఏరియాలో గాంజా పర్చేస్ చేస్తూ హైదరాబాద్ తర్వాత నిజామాబాద్ మహారాష్ట్ర కూడా వెళ్తున్నాయి. అక్కడ అది ఫైనల్ మళ్ళా అమ్ముతున్నారు. ఈ 2,000 రూపీస్ కేజీ అక్కడ వాళ్ళు అమ్మడం, మార్కెట్లో మాత్రం 7,000 to 10,000 రూపీస్ పర్ కేజీ వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. ఈ గ్యాంగ్కి ఇంకా ఏమైనా అఫెన్సెస్ ఉన్నా, గతంలో కూడా ఏమైనా పాత్ర ఉందా అని దానికి సంబంధి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఈ గాంజాయి దొరుకుతున్నాయి. ఈ కొన్ని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్ తయారు చేస్తూ ఈ టీ స్టాల్ కావచ్చు, మన పాన్ షాప్ అక్కడ కూడా 100 రూపాయలు to 200 రూపాయలు కొంతమంది విక్రయం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ హెచ్చరిక, మన దేశంలో కఠినమైన చట్టం అంతే ఈ NDPS యాక్ట్. దాంట్లో ఈవెన్ హ్యాంగింగ్ పనిష్మెంట్ కూడా ఉంది. ఎవరు ఇట్లా మరో అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి, ఆ నార్కోటిక్స్ ట్రాఫికర్స్కి హ్యాంగింగ్ పనిష్మెంట్ దాకా పనిష్మెంట్ ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఈ గాంజాయి విక్రయం ఎవరు చేస్తున్నారు, కొన్ని జీవితాలు నాశనం చేస్తున్నారు. స్పెషలీ వాళ్ళ టార్గెట్ అంతే కాలేజ్ పిల్లలు ఉంటున్నారు. వాళ్ళ మీద ఈ NDPS యాక్ట్ కింద కేసు బుక్ చేసి పక్కా, తర్వాత PD యాక్ట్ కూడా, PD యాక్ట్లో వాళ్ళని బుక్ చేసి మళ్ళా విదిన్ 1 year లోపల ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ట్రయల్ కూడా చేస్తారు. పక్కా శిక్ష పడినట్లు మనం చూస్తాం. ఈ గాంజా విక్రయం కావచ్చు, డ్రగ్స్, తర్వాత ఈ కొన్ని ఆన్లైన్ కూడా ఇలాంటి కొన్ని డ్రగ్స్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీద ఎక్కువ మన ఫోకస్ ఉంటుంది, నిఘా ఉంటుంది. ఈ ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అక్రమ రవాణా అవుతున్నాయి అది సోర్స్ ఏరియా, తర్వాత ఎక్కడ సప్లై అవుతున్నాయి ఆ డెస్టినేషన్ ఏరియా. ఈ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ దాకా
దాంట్లో ఎవరెవరు చైన్ ఆఫ్ ట్రాఫికర్ ఓరిజిన్ టు డెస్టినేషన్ వాళ్ళందరినీ మనం అరెస్ట్ చేస్తాం. తర్వాత వాళ్ళ పక్క శిక్ష పడినట్లు మనం చూస్తాం. ఈ గాంజాయి విక్రయ సంబంధి ఎవరి దగ్గర మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దయచేసి ఇమీడియట్లీ పోలీస్కి కూడా మీరు కోఆపరేట్ చేయండి. शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन और मंगलहाट पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने आज एक साथ मिलकर अपने अपने डिविजन्स के बहुत सारे इलाकों में चबूतरा मिशन जोरदार अंदाज में चलाया और रात देर गए जूस सेंटर्स, होटल्स वगैरह और दीगर बेकार जगहों पर बेकारी से अपना वक्त गुजारने वाले करीब 200 नौजवानों को हिरासत में लेते हुए रातों में छुप छुप कर कारोबार करने वालों पर छोटे छोटे पेटी केसेस भी लगा दिए। इस मिशन में डीसीपी वेस्ट जोन बी सुमति की निगरानी में एसीपी गोशा महल नरेंद्र रेड्डी, आसिफ नगर के एसीपी नरसिम्हा रेड्डी की क़ियादत में हबीबनगर पुलिस स्टेशन और मंगलहाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स ने अपने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर डीसीपी ने हिरासत में लिए जाने वाले नौजवानों को समझाते हुए कहा कि शहर हैदराबाद अब ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है, लिहाजा इससे फ़ायदा हासिल करते हुए सभी नौजवान अपनी तालीम पर तवज्जो दें और अपना मुस्तकबिल संवारें। साथ ही ऐसा करने का सभी को इस मौके पर हलफ भी दिलाया। लिमिट्स में 2 पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में वेस्ट जोन के अंदर हैदराबाद सिटी में आज 11 बजे के बाद ऑपरेशन चबूतरा, राउडी शीटर काउंसलिंग और पेटी केस पेटी केस एप्लीकेशन में जो जेल को जाके आए फिर से और 1-2 बार करके आए उसके साथ काउंसलिंग, ये तीनों काम 11 बजे के बाद चला। इसमें पूरा ऑफिसर्स एसीपी गोशा महल, एसीपी आसिफ नगर और इंस्पेक्टर हबीब नगर, इंस्पेक्टर मंगलहाट और पूरे हमारे स्टाफ मिलके 11 बजे के बाद जो चबूतरे पे बैठे हुए हैं 200 लोगों को लगभग यूथ को पूरे इधर आके काउंसलिंग करें। हमारे एरिया के सोशल वर्कर्स और एरिया के जो हमारे पुलिस फ्रेंडली है उनके साथ ये चबूतरा करने का मतलब ये है कि हमारा पेट्रोलिंग कैसा है, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो 11 बजे के बाद फिरते, नहीं तो छोटे छोटे झगड़ा करते, नहीं तो पी के फिरते, नहीं तो एस्टैब्लिशमेंट्स ओवर टाइम ओपन करते, ये पूरों को पुलिस टेक्नोलॉजी के वहाँ पेट्रोलिंग और पूरे टेक्नोलॉजी लेके कैसे काम करते उसको मालूम होने के वास्ते हम राउडी शीटरों को इधर लाए और एमओ ऑफेंडर्स को लाए, जो जेल को गए उसके साथ गए। इससे ये साबित होता कि हम ये जो आए 200 लोगों में 23 पीपल गॉट ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट्स विथ एग्जिस्टिंग क्रिमिनल्स। इसका क्या है उसके साथ और देखना पड़ता, क्यों उसका कॉन्टैक्ट्स है एक करने के बाद उसके ऊपर भी केसा डाल सकते हैं। और ये काउंसलिंग के अलावा ये हमें पहचानत होता बाहर फिरने वालों में कितने लोगों को 11 बजे फिरने वालों में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये पूरा क्राइम कम करने के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने के लिए है, पीस और सिक्योरिटी एरिया में बढ़ाने के लिए है। ये वेरी ओकेजनली 1 मंथ को एक बार नहीं तो 15 डेज को एक बार ये जारी होता। मैडम खास करके जैसे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट्स 1 o'clock के बाद जो 12 o'clock के बाद ओपन करते उसका हमें वी आर गिविंग दिस मैसेज टू देम दैट हम नहीं पीटते, नहीं मारते, पुलिस स्टेशन को नहीं लाते, मगर एविडेंस से आपके ऊपर केसेस लगते। 1-2 बार करे तो courts are satisfied that they are creating nuisance in the area by making people gathering in a certain places, they will get jails। और ओनर के ऊपर भी लगाएंगे और जो मैनेजर्स नहीं तो जो उसको मैनेज करते उसके ऊपर भी लाएंगे। दिस इज़ वन मैसेज। एंड सेकंड इज़ जो वाइटनर और गांजा पीने वाले छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में उसका बड़ा क्वांटिटीज़ कहाँ से आ रहे हैं उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। जो 2 kgs 5 kgs लाके छोटे पैकेटों में दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर द यंगस्टर्स भी हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे, उसके ऊपर केसेस रखेंगे, अगर चाहे तो पीडी एक्ट भी रख सकते हैं। मैडम लास्ट पीपल जो जेल को गए इधर आए पेटी केसेस में हबीब नगर से
3 लोग मंगलहाट से आए, उसके ज़्यादातर लोग पब्लिक न्यूसेंस वाले हैं। ये पब्लिक न्यूसेंस भी 11 बजे के बाद करने वाले हैं। रिपीट ऑफेंडर्स ऑलमोस्ट 23 है जो अभी तक जो गलतियां करे हमको नहीं मालूम होने की वजह से कर चुके हैं। अब हमको नसीहत हो गई, पुलिस वाले वीडियो भी दिखाए, हमारे अच्छाई के लिए हमको यहाँ बुला के हमको समझा रहे हैं। गैर जरूरी काम हम नहीं करेंगे। अब हमारा संसार में और हमारे घरों में, हमारे कारोबार में मसरूफ रहेंगे। अब हमारी जिंदगी में हम खुशहाल रहेंगे। आइंदा ऐसा मौका नहीं देंगे। शाम में 9-10 बजे तक, 11 बजे तक घर में पहुंच जाएंगे। 11 बजे के बाद हम आगे आइंदा से नहीं दिखेंगे। हम वायदा करते हैं और कसम खाते हैं आइंदा से ये हरकत हम नहीं करेंगे। हम सुधर के बताएंगे, हम मौका नहीं देंगे। ये हम वादा करते हैं और कसम खाते हैं, बड़ों की इज्जत करेंगे। हम हमारा वायदा पक्का है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। भारत की मुतनाज़ा तंजीम आरएसएस की एक मशहूर शाख बजरंग दल से जुड़े बहुत सारे हिंदू कारकुनों ने आज शहर हैदराबाद के मशहूर तेलुगु चैनल TV9 के ऑफिस के रूबरू धरना दिया और बतलाया कि दीपावली के मौके पर इस चैनल ने गधों को पटाखे फोड़ते हुए दिखलाया था, जिसकी वजह से हिंदू मजहब का नाम बदनाम हुआ, जबकि गौ माता के पुत्र गधे तो कतई नहीं हो सकते। लिहाजा इन कारकुनों ने धरना देते हुए टीवी ऑफिस के रूबरू सड़क पर आज ढेर सारे पटाखे फोड़कर उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो लोग गधे कतई नहीं है। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें मुंतशिर कर दिया, लेकिन तब तक पटाखों के धुएं से वहां की आबो हवा एकदम खराब होकर रह गई थी। शहर हैदराबाद के खैरताबाद में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के विश्वेश्वरा भवन ऑडिटोरियम में आज माइनिंग के सिलसिले में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से MLA श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए बतलाया कि माइनिंग कौमी तरक्की में अपना अहम रोल अदा करती आई है और अदा करती है, और इन्हीं के ज़रिए तामीराती अशिया आवाम को दस्तयाब होती हैं। साबिक़ा में 2004 और 13 के दौरान मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की इनकम 13.66 करोड़ इन्हीं की मरून मिन्नत थी, लेकिन अलहदा तेलंगाना के बाद इसमें इजाफा हो गया और पिछले 10 सालों में ये इनकम 2383 करोड़ तक पहुंच गई। इस तरह से माइनिंग रियासतों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, ये इन्होंने समझाने की कोशिश की। etc. is one of the important countries based with the mineral resources. Mining industry is a crucial sector in contributing economy of nation. The mining sector is dynamic and need to enhance its technology and attract investment from both domestic and multinational companies. Mining is a labor-intensive industry and has a huge potential for employment
generation, it can play an important role in creating more job opportunities, particularly in the backward areas, which have limited potential for the economic activities. I am happy that so many of you are here today. First steps are usually small, but they are significant. What the discussion and deliberation take place in the conference means a lot towards growth of mining sector. After formation of Telangana, our mines policy and industries policy is very good. In Home Minister for Government of Telangana, Sri Mohammad Mahmood Ali Garu, Chairman Mining Engineers and Director of Mining, Sri B.R.V. Sushil Kumar Garu, Chairman Institute of Engineering, Dr. G. Rameshwara Garu, Convener, Organizing Committee of this committee, Instruction, Sri B. Ramesh Kumar Garu, Chairman MNDB, Sri Chandra Mohan Garu, Secretary, Sri T. Ajay Garu, distinguished guests, on the dais of the dais, my dear students, friends, press, media, ladies and gentlemen, good morning to everybody. It gives me great pleasure to welcome you to all to 3-day international conference on mining, present and future investments, issues and challenges, being held from today to 25th October 2019. I am also basically not full engineer, half engineer. Actually, I studied engineering at Masar Tang, Nagarjuna Engineering College during 1966 to 69. During Telangana hesitation, I discontinued my education. Then I joined in politics. You are all become a masters in engineers and mining. I have become master in politics. When all masters will stick together, my opinion is that masters means masters. The great people, the field, whatever it may be, either politics or engineering or some other business, master is master. Masters produce a good result to the society. This is my concept. One engineer, he passed M.Tech and PhD something. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान,
सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत करने वाले मशहूर लीडर फिरोज खान के इंतखाबात के दौरान एक तेलुगु चैनल को दिए गए अपने एक इंटरव्यू को मुतनाज़ा बना देने पर आज वो दोबारा आवाम के रूबरू आए और अपनी बात साफ करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज खान। हुजूर नगर बाई इलेक्शन में मैं बिजी था। मुझे ये इत्तला मिली कि एक वीडियो वायरल हो रहा जो मेरा पुराना इंटरव्यू था MP इलेक्शन में, जो मैं एक तेलुगु चैनल को दिया और वो 1 घंटा 45 मिनट का इंटरव्यू है और उसमें बताया ये जाता है कि फिरोज खान ये बोले हैं कि हैदराबाद और ओल्ड सिटी में 50,000 सेक्स वर्कर्स है। पहली बात मैं आपको करेक्शन कर देता हूं, यहाँ पे मैं 15,000 बोला और वो किस बुनियाद पे बोला मैं आपको समझाना चाहता हूं। रही बात ये जो भी मेरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये हमारे फेसबुक के बेरोजगार हैं, उनका बैंड मारने के लिए फिरोज खान को बदनाम कर रहे हैं। फिरोज खान क्या बोले और पहली बात इन लोगों को तेलुगु समझ में आती। 1 घंटा 45 मिनट का है मेरा इंटरव्यू। पहले आप एक ट्रांसलेटर को बिठा के आप सुनिए, गौर से सुनिए मैं क्या बोला। मैं ये बोला कि हैदराबाद ओल्ड सिटी, हैदराबाद का मतलब पूरे GHMC लिमिट, उसमें 15,000 सेक्स वर्कर्स है। 15,000, 15,000, जिसको 50,000 बोल रहे हैं लोग। पहली गलती इनकी। यहां पे आपको समझ में आता किस तरीके से तोड़ रहे हैं, मड़ोड़ रहे हैं, किस तरीके से एडिटिंग हो रही, किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा है और मेरे को बदनामी करने के लिए किस तरीके से मेरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक रिपोर्ट और एक सर्वे छपी और वो रिपोर्ट और सर्वे जब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तहत एक रिपोर्ट सबमिट की गई कि ये सेक्स वर्कर्स की वजह से एड्स फैल रहा और कई तरह की बीमारी फैल रही। और इसके अंदर ये पेपर में और ये रिपोर्ट में एरियाज भी मेंशन है। और जब ये टाइम्स में ये रिपोर्ट आई, ये सर्वे आई, जब आप लोग खामोश थे और आज फिरोज खान ये बोला बोल के मैनिपुलेट करके एडिटिंग करके आप एक वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें आपको फिरोज खान को बदनाम करना है। मेहरबानी करके फिरोज खान को बदनाम करने में आप कौम को बदनाम मत करिए। और पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद में रहता, पूरा हिंदुस्तान ओल्ड सिटी में रहता। मैं कोई मजहब को, कोई कौम को मैं उंगली नहीं दिखाया, ना मेरे को दिखाने का इख्तियार है। मैं एक रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आपके सामने ये बात रखा कि वो एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ और गुर्बत
जब आती तो कुफ्र की तरफ जाते। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था और ये बात मैं एग्जैक्ट तेलुगु में बोला हूं। और मैं तेलुगु चैनल में क्या बोला, बड़ी तकलीफ से दुखम तो बोलते, बड़े तकलीफ से अपने सीने को वजन करते हुए, बड़े दुख से, बड़े गम भरे दिल से मैं ये बात बोल रहा हूं बोला। हर मां और बहन की इज्जत करना मेरा फर्ज बनता। मैं ये नहीं भूला कि मैं उनसे पैदा हुआ और आप आपकी जाती मफाद के लिए फिरोज खान को बदनाम करते जा रहे हैं। आप बोल रहे मेरे को केस में बुक कराते साइबर क्राइम। जाइए आप जाके जो मेरा ओरिजिनल इंटरव्यू है वो चैनल वालों को बुलाइए, बिठाइए, 1 घंटा 45 मिनट देखिए, ट्रांसलेटर को रखिए और उसके बाद में मैं कुछ भी गलती करा तो आप केस बुक कराइए और आप मेरे को जो सजा देना है दीजिए। मैं फिर से एक टाइम आपको बोल रहा हूं, मैं कोई भी मजहब को उंगली दिखा के नहीं बोला और खुसूसी मुसलमानों को। और उसके बावजूद भी अगर से ये सर्वे और ये रिपोर्ट के आधार के बाद भी अगर से मैं बोला हूं और किसी को तकलीफ हो रही तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। और पूरे भाइयों को मैं ये गुजारिश करता हूं कि सच को सामने लाइए और आप मेरे पुराने वीडियोस, मेरे पुराने फोटोज पूरा एडिटिंग करके, पूरे चेंज करके, इधर की उधर फोटो लगा के आप मेरे को बदनाम करना चाह रहे, मेरे खानदान को बदनाम करना चाह रहे। करिए आप खानदान को बदनाम। इज्जत और जिल्लत अल्लाह देते, मगर आप भी जज्बा रखते। आज आप जो भी मेरे वीडियोस डाल रहे हैं जज्बे से डाल रहे हैं। चलिए मानता हूं बात, चलो अपना नाम नहीं करना चाह रहे ना, आप जज्बे से डाल रहे हैं, पर हकीकत तो जानिए आप, हकीकत क्या है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसको उंगली नहीं दिखाया, कोई कौम को नहीं बोला, मुसलमानों को नहीं बोला, कोई एरिया को नहीं बोला। मैं सिर्फ ये रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं और आपको ये रिपोर्ट होना, ये पेपर होना 2012 का, आप व्हाट्सएप करिए, ये रिपोर्ट होना, आप व्हाट्सएप करिए, मैं ये रिपोर्ट भेजाऊंगा, ये पेपर भेजाऊंगा, आप पढ़ लीजिए। हम जो भी सियासत में बोलते, बेशक हम जो महसूस करते वो बोलते, मगर उसके साथ साथ हम प्रूफ रख के बात करते, हमारी जांच पड़ताल करके बात करते। तो फिर से एक टाइम बता रहा हूं तमाम मेरे भाई और बहनों को कि मेरा मतलब कुछ अलग था और उसके बावजूद अगर से आप लोग को तकलीफ हुई तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं। और सच को जानिए, ट्रांसलेटर को बिठा के आप वो पूरा 1 घंटा 45 मिनट देखिए। आप, मेरी गुजारिश है आपसे, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।